from SAST Science Group. I am here for you. My name is Dipti Dilwadia. I am MSc BA and I have 11th year experience of 11th and 12th science. Okay. Today we are going to learn about chapter number 3, matrices. Okay. So I am going directly on my topic, chapter number 3, matrices. According to last year's sample paper blueprint, this chapter is containing about 7 marks of weightage. Right now we are no needed how it is distributed, okay, because of blueprint is changeable. It is not compulsory that the mark weightage is as we know, okay. So let's work on from it. Matrices. Why this chapter is important? Why we are learning this chapter? Friends, any chapter we are going to learn, हमको definitely पता होना चाहिए कि why we are studying this. Why we need this? So matrices has many useful branches. Okay, various branches है उसकी, लेकिन the main use is we are going to solve the linear equations. आपको पता है 10th standard में you studied two set of system of linear equation with only 2 equations, or you are going to study you solve the equation by 4 methods. Now from matrices you can not find only 2 coefficients but only 2 constants, but you can find more than 2 constant. Sorry. Okay, so I am going to start with matrices. What is the matrices? Suppose I am writing a name. I have 4 names: Rani, Hema, Aditi and Rekha. Okay, suppose I have this 4 girls name here. Now I am writing age of them. Suppose anything, 15, 7, 13, no need to be in any order. Okay, this is their age. I am writing here their height, weight. Suppose something more you can add. So height, let it be 15 years, so let it be 4.5 each. 7 years, so 3.2 each. Okay, 13 years, so 4.2 each, and 11 years, 4 each. This is not a perfect data, approximate data. Okay, so here you can write weight. Here you can write some more details, and I can make the table more and more large. Okay, this kind of work we can already done in statistic. हम already statistic में ऐसे data collect कर चुके हैं, उससे related information जो थी उसकी बातें कर चुके हैं. तो क्या करेंगे उस data का, वो भी हम statistic में पढ़ चुके हैं when we talk about mean, mode और median. Now I don't need mean, mode और median. ठीक है? I want a linear equation solution, not only for 2 constants but more than 2, 3, 4. You can solve 2 equations also, but 2 equations, 3, if you have 2, 3, 4, 5, so many equations, then what are you going to do? So first one, what is the matrix? Guys, it is obviously not a Bollywood Hollywood film. Matrix. So what is the matrix? मैंने यहाँ पे क्या किया था, डेटा कलेक्ट किया, like a name, age, height, so on. ठीक है? तो it is a rectangular array order of real numbers, complex numbers
trigonometric function or function, any function you can take, exponential, etc. So matrix, it is an ordered array. It is an ordered array of a rectangular numbers. Which kind of numbers? All kind of numbers, like a real number or complex numbers also. Okay, first thing first, numbers, and second thing, and functions. Which kind of functions? All kind of function, exponential, arithmetic, trigonometric, etc. जितने भी फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, it can be any functions. तो what is the matrix? It is an order array of rectangular. देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं बोल रही हूँ, मैं रेक्टेंगुलर बोल रही हूँ. तो ये यहाँ पे भी आप लोग ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है, यहाँ पे भी आप लोग इसको वाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इट इज नॉट नीडेड दैट 4 नेम आर इन इट. You can write 3 or you can write 10. How much data you want, you can add it. Okay, so it is an ordered array of rectangular numbers. Which kind of numbers? Real or complex, both kind of. And functions. So which kind of functions? So you know the functions, you make a list. All kind of function, it can be here in matrices. तो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. एज फॉर एग्जाम्पल, A is a matrix. देखिए, A is a matrix. Here I am putting a function, putting a value 3√5. ओके, लिखना कैसे है? फर्स्ट थिंग तो आपको जो आप क्लोज ब्रैकेट बनाते थे वही है, लेकिन बड़ा बनाना है. यहाँ पे नो कॉमा हियर. यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट. यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि यहाँ पे कॉमा नहीं करना है. अब मैं क्या कर रही हूँ? नंबर्स, फंक्शंस ऐड कर रही हूँ. इट कैन बी एनीथिंग. √7, 9, -100, 7, 42, -50, 100 and 1000. Okay, e raised to x, 10 inverse x, all kind of function. हाँ, एक और चीज, आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अभी सीखने वाले हैं, मैं भूल गई यहाँ पे. आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन आएगी, आपको एक मस्ट, यू हैव टू 1 रो और 1 कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ओनली. ठीक है, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स डिटर्मिनेंट में है, सो वी टॉक अबाउट इट लेटर. तो कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस. ओके, देखिए मैंने नंबर्स का भी यूज किया, स्क्वायर रूट का भी यूज किया, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स. स्क्वायर रूट मतलब आपके रियल नंबर्स आ गए. एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे मैंने यूज किया, अरिथमेटिक फंक्शन यूज किया, इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्री भी यूज कर दिया और इनवर्स भी यूज कर लिया. ठीक है, सो यू कैन टेक एनी नंबर, एनी फंक्शंस you want. Okay, one more thing. What is this? This data is called member or element of a matrix. This data is called matrix having a numbers or a functions inside it is called elements or members of
a particular मैट्रिक्स। जितने भी अंदर मेंबर हम लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स और members of a particular matrices. Okay, so this is the example of matrices, this is the definition, and each and every number or function is called element or member of a matrices. Okay, now we move forward guys, now we move forward to the another step, order of a matrix. So what is the order of matrix? For that I need one more example here. Suppose I am writing anything, फटाफट से लिख लेते हैं, -1 0 -2 + I √3 2 1 4 7 93 -65 sin x and 0. Okay, so what did I do? This horizontal lines are called first row, this is called second row, and this is called a third row. जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी आपको रो ऐड कर देनी है, 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, अगर फोर्थ है तो फोर्थ रो, लाइक दैट. ओके, एंड दिस वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम. फर्स्ट कॉलम, second column, now I am writing just C, this is third column and this is fourth column. So means horizontal line is called row and your vertical lines are called column. Okay, so what is the order of matrices? So how many row I have right now? Total 3 rows. Total यहाँ पे कितनी rows है? 3 rows and 4 column. So this 3 cross 4, 3 by 4 is called order of a matrix. So if I am writing here A equal to Aij, M cross N, यहाँ पे ही लिखना है, जैसे ब्रैकेट कंप्लीट हो वहीं पे लिखना है. यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको क्लियरली दिखे, नहीं तो आपको कहाँ पे लिखना है? यहीं पे लिखना है जहाँ पे आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ. मीन्स A equal to Aij having order M by N, where M is a number of rows and N is a total number of columns. Okay, so this is your general matrix. अब वो कैसे लिखना है वो देखते हैं. ओके, सो एक चीज मैं पहले नोट बना लेती हूँ. हॉरिजॉन्टल लाइंस, horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. सिंपल. देखिए अब जो नेक्स्ट चीज है जनरल फॉर्म, दैट इज द वेरी इम्पॉर्टेंट. आप थियरम तो नहीं कह सकते, फॉर्मेशन है ये वाला जो जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का. सो जनरल फॉर्म, आई कैन राइट जनरल फॉर्म कैसे? A is equal to Aij M cross N. Now see this very carefully. How I can use this? Number 1, देखिए दिमाग में सोचना है ये मेंबर कौन सी प्लेस पे मैंने रखा. दिस इज माई वेरी फर्स्ट रो, दिस इज माई वेरी फर्स्ट रो. सो आई एम राइटिंग फर्स्ट. देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहले रो लिखा है, देन आफ्टर वी राइट हियर कॉलम,
तो सेम वी आर यूजिंग हियर फर्स्ट रो। अब कौन सी कॉलम है देखिए, दिस इज very first row and first column. So I am writing here A11 again, A11, which means this is the element of first row and first column. Clear? Okay. Up first row is continue, columns are changing. This is again my first row but second column. First row, second column. So I am writing here A12. Okay. Moving forward. This is first row. That is clear now. And first, second, third column. Okay. Like here. ये जो मेंबर है आपको आप इसको क्या बोल सकते हैं, कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है, और कॉलम कौन सी है, वो भी फर्स्ट है। सो आई एम राइटिंग हियर A11। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर फर्स्ट रो। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, सो आपको इमेजिन करने में इजी रहेगा। क्या करेंगे, फर्स्ट रो है एंड कौन सी कॉलम है, सेकेंड कॉलम, तो A12। सिमिलरली यहाँ पे A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ओके, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एंड सपोज मेरे पास कितनी कॉलम्स हैं, देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कितनी कॉलम्स है टोटली मेरे पास, n कॉलम्स है टोटली। इन टोटल मेरे पास n कॉलम है, तो यहाँ पे मुझे अप टू n जाना पड़ेगा। हियर आई एम गोइंग अप टू n। सपोज यहाँ पे फोर्थ कॉलम थी, तो लास्ट एलिमेंट क्या आया, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे कहाँ तक जाना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड n कॉलम। अब देखते हैं अब क्या होगा, यहाँ पे कॉलम्स आर सिमिलर, अब रो चेंज हो रही है। देखिए अब दिस इज योर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आई थिंक नाउ you guys are clear. Okay, if there is any doubt, go back and see the video again. Second row फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड वाली रो है मेरी और फर्स्ट वाली कॉलम है। ओके, वैसे मेरे पास कितनी कॉलम्स हैं, मेरे पास n कॉलम्स है। सो आई एम राइटिंग हियर सेकेंड रो n कॉलम। अब इफ आई एम गोइंग इन जनरल, तो मेरे पास रोज कितनी है, I have number of rows means m। टोटल मेरे पास m रोज है, तो मैं जाऊंगी कैसे, A m रो फर्स्ट कॉलम, m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकेंड कॉलम। सेम वे I have m row third column and so on guys. Finally, I have m rows and n column. It means कि यहाँ पे जो आपका रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं हमें, इसको लिखेंगे कैसे, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 3 रोज एंड 4 कॉलम इक्वल टू 12 नहीं लिखना है, इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट। ठीक है, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 इंटू 4, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, देखिए आप 4 + 4 + 4, मतलब टोटल आई हैव 12 एलिमेंट्स। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, आप ऐसे भी गिन सकते हैं 3 3 3 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 12 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो दैट इज योर A थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, A34। वैसे ही यहाँ पे मैं लिखूंगी AMN। कौन सा मेंबर है मेरा, mth रो एंड nth
कॉलम। इस मैट्रिक्स को मैं बोल सकती हूँ m/n मैट्रिक्स। ओके, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड m/n मैट्रिक्स, दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे दो टाइप के एग्जांपल्स करेंगे। एक तो मेरे को मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, उस पे से अगर मुझे बोला है कि A23 फाइंड करो, A31 फाइंड करो, तो अब मैं वो देखूंगी कि आपको ऑर्डर मैट्रिक्स में कितना समझ में आया। ठीक है, सो अगर नंबर 1 इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स 3 2 -1 0 7 √11 5 9 13 7 33 एंड -2। ओके, पहले तो ऑर्डर कितना है? अगेन आई हैव 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 4, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4। तो मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे हमने फाइंड किया? हमने काउंट की कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है। सो देयर आर 3 rows and 4 columns. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी मेंबर्स, तो यू कैन काउंट हियर इजीली। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है और आपको कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3/4 और 4/3 और 4/4 एनीथिंग, तो आप कैसे काउंट करोगे? तो जस्ट मल्टीप्लाई इट। सो नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपकी 4.1 की फर्स्ट 3.1 की फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ऐसी ही है कुछ, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड एग्जांपल ले रहे हैं। सो नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं? अगर मैं 3 से 4 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे टोटल नंबर मिल जाएंगे। ओके, थर्ड वन, इफ एनीवन आस्क मी व्हाट इज द 3A32, मतलब मेरा जो A32 वाला मेंबर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, इजीली। तो अब मैं जाऊंगी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो, दिस इज माय थर्ड रो। ओके, मेरा आंसर यहाँ पे है। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, कॉलम कौन सी वाली है? तो कॉलम है आपकी सेकेंड वन, तो दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड, सो दिस इज योर आंसर। इजी, ठीक है। कॉलम में देख लो, पहले रो में देख लो, देन आफ्टर कॉलम में देख लो विच वन इज योर आंसर। सो योर आंसर इज 7। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, यू सॉल्व इट योरसेल्फ। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। A23 फाइंड करो। नंबर 5, अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज A14, so what is the answer? You can easily find second row, third column. अब जाओ सेकेंड रो में जाओ, देन आफ्टर कॉलम में देखो। सिमिलरली आप देखो फर्स्ट रो में एंड फोर्थ कॉलम में, तो आपका जवाब, आपका जो आंसर है इसी मैट्रिक्स में है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था? यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ले लिया था, राइट? मैट्रिक्स लिया था और उस पे से मैंने डिफरेंट थिंग्स फाइंड की। अब देखिए, अब दूसरी चीज क्या है? सपोज मुझे गिवन है माय Aij इज 2/2 मैट्रिक्स, 2 रो है, 2 कॉलम्स है, ठीक है। माय Aij इज Aij 2/2, और ये जो मैट्रिक्स है ना, बना कैसे है? अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है, सो हाउ आई कैन मेक इट? सपोज I given that I plus j is equal to my Aij. Aij कैसे बनेगा? अगर मैं रो प्लस कॉलम करूँ तो मुझे मिलेगा Aij। सो अब मैट्रिक्स बनाते कैसे? इस टाइप के भी बहुत सारे सम्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। मैंने इजीएस्ट जो एग्जाम्पल है वो लिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मैं जो जनरल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ। What is the general form? We can make it from this, the order of a matrix. कितनी रोज है? 2, सिंपल। तो
पहला मेंबर बन गया मेरा A11 A21, देखिए 2 रोज मैंने ले ली। अब कॉलम भी 2 है, ठीक है, तो ये सेकंड कॉलम हो गई A12 A22। देखिए एक बार फिर से चेक करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फाइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फाइन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये तो मेरा मैट्रिक्स जो मुझे गिवन है उस पे से मैंने बना दिया, लेकिन ये सारे अननोन है, अभी भाई भाग रहे हैं मुझसे, ठीक है। मैं अब भी पकड़ पकड़ के लाऊंगी। कैसे लाऊंगी? ये जो मुझे गिवन है ना, ये मेरी थ्रेड है, मैं उससे उनको खींच के लाऊंगी। देखो लाते हैं, इसको ध्यान से देखना। ये क्या हो गया भाई आपका? आई हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज योर जे। तो बस ऐड करते जाओ। तो पहला मेंबर मुझे कैसे मिलेगा? A11 मीन्स ये आपका आई, ये आपका जे। तो मैं क्या करूंगी? I प्लस जे मीन्स आई भी मेरे पास अभी 1 है और जे भी 1 है। देखिए हाँ, गलती से ये अगर आई है तो उसको आयोटा नहीं मान लेना। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। दिस इज आई मीन्स नंबर ऑफ रो, आई मीन्स नंबर ऑफ रो, ओके। तो क्या करूंगी? A11 मीन्स मुझे क्या करना है? दोनों का एडिशन, दैट इज माई गिवन फॉर्मूला। तो A11 मीन्स 1 प्लस 1, योर मेंबर इज 2, ओके। सपोज A12 सेकेंड मेंबर A12, तो क्या होगा? आई तो मेरा अगेन 1 है, जे चेंज हो गया 2 हो गया, so that member is 1 plus 2, that is 3, okay। अब A21 फिर से मुझे क्या करना है? जस्ट आई हैव टू एड दिस टू नंबर्स, so 2 plus 1 that is 3, अगेन A22 I2 है, J भी 2 है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो I is equal to 1, J is equal to 1। यहाँ पे I is equal to 1, J is equal to 2। यहाँ पे I equal to 2, J equal to 1। और यहाँ पे क्या होगा? I equal to 2, J is also equal to 2। दोनों आपके 2 2 है, तो ऐड करो। 2 plus 2 equal to 4। So what is my answer? My answer, we made the 2 by 2 matrix our own self। Very good। देखो हम लोग तो अभी मैट्रिक्स बनाने भी लगे हैं। तो कैसे बनाया हमने? जस्ट पुट इट, हमने बनाने के लिए यूज किया द फॉर्मूला वी हैव गिवन। देखिए कुछ भी बनाने के लिए मटेरियल, रो मटेरियल चाहिए ना, तो वो रो मटेरियल आपका फॉर्मूला है, दैट्स इट। उसका यूज कर लिया, बन गया अपने आप, ठीक है। तो इजीली यू कैन मेक 2 3। ये क्या है? 2 1 वाला मेंबर A21। यहाँ पे लिखते टाइम, आंसर लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। सपोज मैंने यहाँ पे A11 लिखा है, अगर उसके बाद मैं A21 फाइंड कर लूँगी तो यहाँ पे तो सेम आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम आए, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम मैट्रिक्स खुद बना भी सकते हैं, वो भी बहुत इजीली।